Assalamu alaikum and welcome to the comprehensive course on Google Ads. I'm excited to have you here as we are going to start our journey. And we have a short time, so I guess all students are here who needs to join this course. And this is the most powerful tool in the digital marketing. Let's discuss it one by one. After this little introduction of Google Ads, I'll take your short intro and then we will go ahead. All right, so everyone get ready. Uh, mm, After 10 to 15 minutes, you can unmute yourself, and then there is a question answer session as well. Basically, this course is designed for individuals at all levels. Just let me know that you can hear my voice. All right. Thank you so much. Your feedback is really very valuable for me. So we are on the Google Ads. Let's start it. This course is basically designed for individuals at all levels. Whether you are a beginner and you're looking to understand the basics, or if you are an experienced person or an experienced marketer aiming to refine your skills. So this course is best for you. So we are offering this course basically free of cost for you people, and everybody can enroll in this. The question is that everybody comes in the mind, what is Google Ad? You all have different types of skills, but the Google Ad is the masters of everything. Like in the digital era, Google Ad is an online advertising platform developed by Google, which allows businesses to create ads that appear on Google search engine and other than Google properties as well. You know the Google properties. The We will discuss all the properties of the Google as well. As I'll show you my screen, then we will discuss. Basically, it operates on a pay per click, which is called PPC model. And it means you can only pay when someone clicks on your ad with its advanced targeting option. Google Ads actually help you reach your ideal audience at the right time with the right message. If you want to target something and in a big niche, then you can target with the right and you can capture the right audience. The basic purpose of the Google ad is to capture the audience on the right time and the right place. Hope you understand what I mean to say. Are you comfortable with this language, और मैं उर्दू भी बोल सकती हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. करते आप उर्दू में ही समझा दें। उर्दू में कर ले, चले ठीक है, उर्दू में कर लेते हैं. थैंक यू। नो प्रॉब्लम. अच्छा, बेसिकली यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं, तो मुझे लगा कि शायद उनके साथ भी कोलैबोरेट होना चाहिए. तो हम लोग जो बेसिक स्किल्स लर्न कर रहे हैं, तो हमारी तो कम्युनिकेशन इतनी है कि हम अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो बिकॉज दिस इज़ द रियली बेसिक लैंग्वेज, यू नो. तो दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं कि गूगल एड्स है क्या. एक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि गूगल ने डेवलप किया है और हमारे बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए, जो कि बेसिक सर्च इंजन है उसका, और उसके ऊपर जो है हमारी एडवर्टाइजमेंट को शो करवाता है. और इसमें ना सिर्फ गूगल एड्स का जो सर्च इंजन है वो यूज़ होता है. जिस तरह हम गूगल पे कुछ टाइप करते हैं और हमारे लिए वो हेल्पफुल होता है कि सर्च इंजन लाइक जिसके ऊपर हम सर्च करते हैं, ठीक है, एक बार होता है जो कि अगर आप अंडरस्टैंड करते हो, और सारे यहाँ पे होप के प्रोफेशनल्स हैं, तो सर्च तो सबको करनी आती है. ठीक है, सर्च इंजन पे हम कुछ भी टाइप करते हैं तो वो चीज़ हमारे सामने अपीयर हो जाती है, जो कुछ भी जो हम लोगों ने फाइंड आउट करना होता है. और गूगल की प्रॉपर्टीज़ ना, हमारे पास बहुत मुख्तलिफ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं. गूगल ऐड के अलावा और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर जो गूगल है वो शो करवाता है हमारी एडवर्टाइजमेंट को.
जिसे थर्ड पार्टी बी जो थर्ड पार्टी जो पार्टीज प्रॉपर्टीज है ना वो भी इंक्लूडेड है। वो मैं आपको सारी डिटेल्स में बताऊंगी कि ये कैसे होता है, कैसे वर्क करती है। ठीक है, और इसका जो बेसिक मॉडल है वो किस पे वर्क करता है, ये पे पर क्लिक पे वर्क करता है। पे पर क्लिक होता क्या है, विद दैट इज द पीपीसी मॉडल। हमारा आज का जो मॉड्यूल था ना वो ये था कि इंट्रोडक्शन टू गूगल एड्स। तो मैं उसी को फोकस करूंगी ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएं कि एक्चुअल हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। ठीक है, पे पर क्लिक मॉडल को पीपीसी से अंडरस्टैंड करना बहुत इजी है, क्योंकि व्हेन समवन क्लिक्स ऑन योर एड देन इट विल बी पेड। ठीक है, विद इट्स एडवांस टारगेटिंग ऑप्शन, जब आप की गूगल एड्स आपको हेल्प करता है आपकी रीच में, प्रॉबेबली योर आइडियल ऑडियंस उसमें टारगेट की जाती है, और राइट टाइम पे और राइट मैसेज के साथ जब आपको ये सब टारगेट करना आ जाएगा, और ये सारा इंशाल्लाह इंशाल्लाह विद इन 2 to 3 months हम लोग कवर करेंगे। और हमने जो टाइम ड्यूरेशन रखा है वो 3 months का रखा है आपके लिए, इसीलिए कि और विद इन अ वीक वी हैव 3 days क्लास। बिफोर दिस सेशन हमारा रेगुलर सेशन होता था 1 month में, और 1.5 month में ऑलमोस्ट कवर हो जाता था। माशाल्लाह से 3-4 बैचेस हमारे ऐसे गए हैं जो बहुत जल्दी और क्विक उन्होंने किया है। लेकिन इस सेशन को हमने थोड़ा प्रोलॉन्ग इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास थोड़ा एक टाइम शॉर्टेज है, और आपकी लर्निंग के लिए हम आपको बीच में विद द मीन टाइम जो कि हमारे पास गैप्स होंगे उसमें हम आपको जो वर्क होता है जो आपने करना है, ठीक है, आपकी असाइनमेंट्स हैं वो आपने कंप्लीट करनी है, वो देंगे, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस हो। अगर फॉर द बीइंग क्विकली अगर हम उसको लेके चलेंगे ना, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो स्किप हो जाते हैं, नेक्स्ट डे वेरी नेक्स्ट डे अगर चलना शुरू कर दे तो थोड़ा मैसी हो जाता है और कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। तो हमने डिसाइड किया कि दिस टाइम आपके लिए इजी किया जाए, और कन्वीनियंट बनाने के लिए थोड़े असाइनमेंट्स को ज़्यादा हम लोगों ने कर दिया। ठीक है, तो ये एक चीज़ पे पर क्लिक मॉडल जो है वो मैं आपको समझाऊंगी, और वाई गूगल एड्स इम्पॉर्टेंट है क्यों। गूगल एड्स जो है आजकल के दौर में इसलिए इम्पॉर्टेंट है, 4 इसकी बेसिक रीजंस हैं। एक तो मैसिव रीच, फर्स्ट वन है। ठीक है, उसमें क्या होता है, गूगल बहुत ज़्यादा बिलियंस और ट्रिलियंस सर्चेस जो है ना एवरी डे को डील कर रहा होता है। बहुत रोज़ाना की बुनियाद पे उस पर सर्चेस हो रही होती हैं जो कि ट्रिलियन की फॉर्म में होती हैं, बहुत ज़्यादा मैसिव सर्चेस हो रही होती हैं। तो एडवर्टाइज़र को प्रोवाइड करता है बेसिकली जो कि बड़ी एक ऑडियंस है ना उसके साथ एक वास्ट एक्सेस। ठीक है, अब आप इस बात को समझो कि मैसिव रीच तक पहुंचना जो है गूगल एड्स का काम है, कि आपने गूगल एड्स चलाया इसलिए कि आपने बहुत बड़ी ऑडियंस को आपने टारगेट करना है। ठीक है, और सेकंड आपकी उसमें चीज़ आ जाती है प्रिसाइज टारगेटिंग। इसमें आपकी डेमोग्राफिक लोकेशन आ जाती है, आपके जो बेसिक कीवर्ड्स हैं वो इस पे बेस कर रहे होते हैं। ठीक है, और इंश्योर करना होता है कि आपका जो एड है वो राइट पर्सन तक पहुंच जाए। मतलब राइट पर्सन तक पहुंचना क्या होता है कि अगर मैंने जो मुझे चाहिए मैं सर्च कर रही हूँ वो उस तक मुझ तक वो एग्जैक्ट जो चीज़ मुझे चाहिए, ठीक है, जिसके बारे में मुझे सर्च करनी है वो मुझे मिल जाए। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द शूज़, ठीक है, और मुझे एक पर्टिकुलर टाइप के शूज़ चाहिए, कैनवस चाहिए या मुझे जॉगर्स चाहिए, मुझे कोई भी और टाइप के शूज़ चाहिए, तो मुझे वो मैं जो टारगेट कर रही हूँ, मुझे सर्च कर रही हूँ, एग्जैक्ट मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन आ जाए कि मुझे कहाँ से बाय करना ईजी होगा, कितने परसेंट मुझे ऑफ होगा, और जो भी उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी उसकी, जो उसको प्रॉबेबली उस तक पहुंचने में हमें रीच तक करने में एक्सेस देंगी, वो हमने अपने एंड पे रख के सोचना है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है वो हम इंशाल्लाह सीखेंगे। फर्स्ट आ गई मैसिव रीच, सेकंड आ गई प्रिसाइज टारगेटिंग, थर्ड आ गई मेजरेबल रिजल्ट्स जो कि डिलीवर होते हैं एनालिटिक्स के साथ। आप ट्रैक कर सकते हो परफॉर्मेंस को, अपनी कैंपेन्स को इन रियल टाइम, और आप मेक श्योर कर सकते हो कि आपके जो डिसीजंस हैं, डाटा ड्रिवन डिसीजंस, वो एक्यूरेट हैं।
ये आपकी तीन चीज़ें तो हो गई, मैसिव रिसर्च, प्रिसाइज टारगेटिंग, मेजरेबल रिजल्ट्स। यू नीड टू लर्न इट एंड आई विल शेयर दिस। मैं ट्राई करूँगी कि मैं इसको बना के ना एक फाइल आपके साथ शेयर कर दूँ, ठीक है। और कॉस्ट एफिशिएंसी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्लेक्सिबल बजटिंग और बिडिंग। बिडिंग स्ट्रेटजीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने कोई भी कैंपेन रन करनी है वो आपकी बिडिंग स्ट्रेटजीज के बगैर रन नहीं होगी। और बिडिंग स्ट्रेटजी जो आपका मेन पार्ट है गूगल एड्स के अंदर, वो इतना कोई कॉम्प्रिहेंसिव है कि उसकी हर चीज़ को लर्न करना, और वो है भी ऐसे जैसे मैथ्स के फॉर्मूलाज होते हैं और आपने वो रट्टे लगाए होते हैं कि यस कि आपने इस फार्मूला के थ्रू जो है वो जाना, और आपको नहीं पता होता कि ये फार्मूला जो है वो किस तरीके से बेस किया था। तो ये बिडिंग स्ट्रैटेजी सेम उसी के ऊपर वर्क करती है, ठीक है। तो कॉस्ट एफिशिएंसी हमने देखनी होती है थ्रू बिडिंग स्ट्रैटेजीज और थ्रू ऑप्टिमाइज आरओआई। आरओआई क्या होता है? हमारा रिजल्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आपका क्या एंड रिजल्ट निकला है। तो ये हमने टारगेट करना होता है। और बेसिकली आपसे क्लाइंट्स भी यही बात करेंगे और ये आपसे यही पूछेंगे कि आप हमें कितना आरओआई जनरेट करके दे सकते हैं। तो हमने उनको जो भी हमारी कैलकुलेशंस होती हैं तो वो हमने कैलकुलेट करके उनको बतानी होती हैं, और ये इंशाल्लाह हम इस कोर्स में सीखेंगे। नाउ द कोर्स ऑब्जेक्टिव और स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं कि हमारा इस कोर्स का बेसिक पर्पस क्या है, कि हम इसमें क्या क्या सीखेंगे। इंट्रोडक्शन टू गूगल एड्स है, अंडरस्टैंडिंग द प्लेटफॉर्म एंड इट्स बेनिफिट्स, ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। प्लस हम एक्सप्लोर करेंगे गूगल एड्स इंटरफेस एंड की कंपोनेंट्स, कि गूगल एड्स का इंटरफेस कैसा है, वो दिखता कैसा है, उसको ऑपरेट कैसे करना है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उनको किस तरीके से हम लोगों ने रन करना होता है। लाइक हमारे पास जो भी अकाउंटेंट यहाँ पे होंगे उनको पता होगा कि अकाउंट्स की चीज़ें किस तरीके से आपने, एक डेटाबेस होती है, ठीक है। और सीएस के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा कि एक डेटाबेस को डिज़ाइन कैसे करते हैं। और उस वो डिफरेंट डेटाबेसेस होती हैं जो कि उन्होंने डिफरेंट नेम से नेम दे के उनको, उन्होंने डिफरेंट एप्लीकेशंस का नेम दे के उन्होंने उनको डिज़ाइन किया होता है, और वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। अभी जो आप मॉड्स वगैरह पे, मॉल वगैरह पे आप जो जब जाते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट डेटाबेस डील कर रहा होता है। उनके पास डेटाबेस ऑलवेज, कि उनके पास लैपटॉप्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं जिनके अंदर वो डाटा फीड कर रहे होते हैं, ठीक है। वो चीज़ इसी तरीके से नॉर्मली आपको ऐसे ही नहीं दे देते। आजकल आपको, आप सारे शॉपिंग आप जब जाते हो तो आपको पता है बड़े मॉल्स में आपने ग्रॉसरी करनी हो, आपने कोई भी क्लॉथिंग करनी हो, आपने कोई शू बाय करना हो, आपने इवन ईच एंड एवरी प्लेस आप कहीं भी जाते हो तो आपके पास क्या फैसिलिटीज़ हैं। हर जगह पे आपके पास ये फैसिलिटी है कि डिफरेंट टाइप्स के डेटाबेसेस यूज़ होते हैं। ये बेसिकली मैं आपको छोटी छोटी एग्जांपल्स दे रही हूँ कि डेटाबेस जो है वो होती क्या है, ठीक है। हाँ, और उसका इंटरफेस कैसा होता है। मतलब बेसिकली ऊपर आपके पास जिस तरह लैपटॉप है, उसकी स्क्रीन है, उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं। आपकी फर्स्ट स्क्रीन है आपके पास मॉनिटर की जो है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास। साइड पे जो आपके छोटे छोटे आइकन है वो क्या कहलाते हैं, उनको कैसे यूज़ करना है, उनको ओपन कैसे करना है। नीचे टास्क बार है, उसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। जब आप वर्ड खोलते हो तो उसका इंटरफेस कैसा होता है, उसके डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ कहाँ कहाँ पे हैं। इसी तरीके से गूगल का एक गूगल एड्स का एक इंटरफेस है जो कि हम लोगों ने लर्न करना है बेसिकली, कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, उसको यूज़ कैसे करना है, उसका पर्पस क्या है। वैसे तो बहुत यूज़र फ्रेंडली है, हर चीज़ को एलैबोरेट करता है, चीज़ों का पता हमें फ़ौरन चल जाता है कि वहाँ पे क्या क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे ही हम देखते हैं हमें क्विकली हम जान जाते हैं। लेकिन ट्रिकी इसलिए है कि जब तक हम उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्योंकि गूगल ऐड इज़ जस्ट अबाउट द प्रैक्टिस। और आप उसको प्रैक्टिस करो तब आपको आता है। अदरवाइज़ ये बिल्कुल ऐसे ही हवाओं में अगर हम तीर चलाएं और हम बहुत सारी वीडियोस देखते रहें तो हमारा भी सर के ऊपर से गुजर जाता है, बिल्कुल समझ में नहीं आता है, ठीक है। ये जस्ट अबाउट ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि सी एस का ईच एंड एवरी स्टेप इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल। आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आपको आएगा कभी भी नहीं। तो बेसिकली ये इंटरफेस को सीखना है, ठीक है। और इसके अलावा हम इफ़ेक्टिव कैंपेन्स को बनाना सीखेंगे। उसमें क्या होगा कि हमारे पास स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस होगी जो कि हमारी फर्स्ट कैंपेन को डिज़ाइन करने में हेल्प आउट करेगी। सेकेंडली लर्निंग होगी अबाउट कैंपेन टाइप्स एंड ग्रुप्स एंड एड क्रिएशंस, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च होगी और स्ट्रैटेजीज होंगी उसके बारे में। सपोज हमारे पास बहुत सारे कीवर्ड हैं और उनको हमने कहाँ से फाइंड आउट करना है।
जैसे कोई आप यहाँ पे एसईओ के लोग होंगे, उनको पता है कि कीवर्ड रिसर्च कैसे होती है, डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं वो लोग, ठीक है? सैमरश हो गया, इसके अलावा और बहुत सारे होते हैं। अब मुझे नाम उनके आते नहीं क्योंकि एसईओ की तरफ मेरा कोई है नहीं इतना। तो जस्ट